آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے بزرگ متی رسول کی معرفت خداوند کا انجیلی پیغام سنیں گے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور میرے ساتھ کلام مقدس کی تلاوت کے لیے کلام مقدس کو کھولیں، اور کلام مقدس میں بک آف میتھیو چیپٹر 22 22واں باب ہے، اور اس کی 34ویں آیت سے ہم 27ویں اور 28ویں آیت تک پڑھیں گے۔ ہلیلویا۔ اگر کوئی پڑھ لے یا کسی نے نکالا ہے تو ضرور پڑھ سکتا ہے، کسی نے نکالا ہے نہیں تو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 34ویں آیت سے لکھا ہے جی۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، تورات میں کون سا حکم بڑا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اب یہ جو کلام مقدس پڑھا گیا ہے، اس میں ہم نے دو چیزیں بڑے غور سے دیکھنی ہیں، سیکھنی ہے۔ پہلے اس میں ایک محبت کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا حکم کیا دیا گیا؟ یس، ذرا دھیان کیے گا، میں جب بولتا ہوں تو میرے الفاظوں کے اندر ہی جواب ہوتا ہے۔ میں نے آلریڈی محبت کی بات کی، اور یہ جو بڑا حکم ہے یہ بھی خداوند خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ دیا ہے، اور کلام میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے کیا کرنا ہے؟ اپنی برابر محبت کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس گھر ہے، کھانے کو پینے کو سب کچھ ہے، تو اس طرح ہمارے ساتھ جو پڑوسی ہے ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ خداوند کی طرف سے ملا ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے محبت اور حکم، اور کلام مقدس بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں سے ہم ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ہلیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور یہ یسوع مسیح کا کلام ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو یہاں جتنا بھی کلام ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، اور ہم نے ایمان کے ساتھ اسے سننا اور قبول کرنا ہے، آمین۔ اور یہاں جو صدوقی تھے، فریسی تھے، وہ ہمیشہ کھوج لگائے رکھتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو پھنسایا جائے، یسوع مسیح سے کوئی سوال کیا جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدام کے آگے مختلف قسم کے سوال رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں جواب پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر ٹونے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہمارے خادم کو پتہ بھی ہے اس چیز کا کہ نہیں۔ بہت دفعہ ایسے آپ نے تجربات کیے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کلام مقدس سے سمجھ آ گئی ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے، تو کسی کا آپ ٹیسٹ نہ لیا کریں۔ ٹیسٹ کس کا لینے کا اختیار ہے؟ کون لیتا ہے ٹیسٹ؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے، ٹیسٹ اس نے لینا ہے، اس نے ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا توڑا ہے کیا نہیں ہے، آمین۔ اور یہاں وہ سوال کرتے ہیں، اور شرع کے عالم یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ یار ربی، یعنی استاد کو ربی کہا جاتا تھا، کہ تورات میں، تورا میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اور یہ آج ہمارے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے منجی یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ بہت سارے لوگ محبت کی ڈیفینیشنز کو مختلف طریقوں سے سمجھتے ہیں۔ کچھ برائی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برائی کریں گے تو یہ ہماری محبت ہے، کچھ اچھائی کریں گے تو محبت سمجھتے ہیں۔ دو محبتیں بڑی خاص ہیں کلام مقدس میں۔
एक मोहब्बत है जो खुदावंद की इलाही मोहब्बत है, उसे अगापे मोहब्बत कहा जाता है। आमीन। और वो मोहब्बत ऐसी है कि जिसके अंदर बेपनाह मोहब्बत, खुलूस, एहसास पाया जाता है। खुदा एहसास करता है, निगाह करता है, अपने लोगों को देखता है, और उस एहसास मोहब्बत के साथ खुदा अपने लोगों के साथ जब कलाम करता है तो अपनी उस मोहब्बत के वसीले से जो खुदा ने हमसे की, हमने खुदा से मोहब्बत की या खुदा ने हमसे की? खुदा ने हमसे मोहब्बत की। और उसने क्या किया? उसने अपने इकलौते बेटे को क्यों भेज दिया? ताकि जो कोई उस पर क्या करे, ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के पास है। आमीन। जब हम पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कलाम मुकद्दस में, तो वहां हमें इस मोहब्बत के बारे में एक बहुत खूबसूरत पैगाम मिलता है। मेरे साथ आप जरूर निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 7वां बाब। अगर कोई निकाल ले तो जरूर आमीन बोला करें। कलाम मुकद्दस को जरूर पढ़ा करें। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। जब मैं इसे पढ़ता हूं मैं खुद भी बरकत पाता हूं। आमीन। जी, 7 बाब की नामी आयत अगर कोई पढ़ सकता है तो जरूर पढ़े, ताकि हम इस कलाम मुकद्दस में से जरूर खुदा के कलाम को सीख सकें और समझ सकें। यस, तेरा खुदा वही खुदा है। यस, वो वफादार खुदा है। यस, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हजार पुश्त तक वो अपने ऐहद को कायम रखता और उन पर रहम करता। आमीन, आमीन। ये देखें, खुदावंद, खुदा की ये मोहब्बत का असर है, ये खुदा की मोहब्बत का एहसास है कि वो पुराने अहदनामे के अंदर, पुराने वक्तों के अंदर, जब हम इस रोए जमीन पर भी पैदा भी नहीं हुए थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त से खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। और कलामे मुकद्दस में अभी तलावत की गई कि सो तू जान ले। कौन जान ले? वो लोग जो कलीसिया है, जो ईमानदार है, जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, सो वो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है जो कल, आज, बल्कि बता क्या है, यकसा खुदा है। हालेलुया। और ये कलाम जो है ये उस वक्त भी था, आज भी है, और जब तक रोहे जमीन पे हम जिंदा है ये कलाम रहेगा। आमीन। और वो कहता है कि वो वफादार खुदा है। हमारा खुदा हमसे वफा करता है, हम बेवफा हो जाते हैं। बहुत दफा हम जिंदगी में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ, बहन भाइयों के साथ जो है वफादारी नहीं करते, अपने खानदानों के साथ वफादारी नहीं करते, खुदा के खादमों के साथ, लीडर के साथ, कलीसिया के साथ और गैर फार्म के साथ वफादारी नहीं करते। हम मफाद प्रस्त हो जाते हैं, हमें अपनी ख्वाहिशें नजर आती हैं, अपनी जरूरतें नजर आती हैं, और हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारा खुदा वफादार खुदा है। वो ना सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि गैर कौमों के लिए भी यकसा है। आमीन। वो जो हमें बरकत देता है वो गैर कौमों को भी वही बरकत देता है। और बाज की किताब में लिखा है कि सूरज जो है वो सब के लिए जो है वो रोशन होता है, बरसात जो है सब के लिए होती है, हवा जब चलती है तो सब के लिए होती है, चाहे उसमें कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई रास्तबाज है। खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। आगे खुदा ने हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है। वो डायरेक्शन ये है कि हमें सेस करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। सो कलाम ये कहता है कि हमारा खुदा वफादार खुदा है जो उससे मोहब्बत रखता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कई दफा वादा कर लेते हैं। बहुत दफा आपने देखा होगा कि नौजवान लड़की लड़का जब ब्याह जाता है और कलीसिया के सामने हाजिर होता है और बाइबल मुकद्दस के ऊपर दोनों मियां और बीवी हाथ रख के वादा करते हैं कि मैं सारी जिंदगी तेरे साथ वफादार रहूंगा और रहूंगी। लेकिन क्या होता है, उस वक्त वादा किया गया, कलीसिया के सामने इकरार किया गया, गवाहों के सामने इकरार किया गया, खुदा को गवाह बनाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही क्या होता है कि वो शादी जो है नाकाम हो जाती है। लड़की भी चली जाती है अपने मेके और लड़का भी उसे छोड़ देता है। कई दफा ऐसा होता है कि वो खानदान जो है मुख्तलिफ बातों की वजह से, बहुत सारी ऐसी खानदानी अमूर की वजह से वो बिखर जाता है।
क्यों? कि उन्होंने उस खुदावंद की मोहब्बत को नहीं जाना होता। क्योंकि अगर नौजवान लड़की लड़का इस जमाने के अंदर, नौजवानी के अंदर, अगर वो अपनी जिंदगी अपने मालिक खुदावंद को दे, खुदा की वफादारी को जाने, खुदा से मोहब्बत करे, तो फिर उस मोहब्बत का वो इकरार उस वक्त करेंगे जब वो नए सफर में शामिल होते हैं, नई जिंदगी में शामिल होते हैं, और फिर जब वो अहद करते हैं कि मैं खुदा को गवाह बनाता हूं, वो जिंदगी कामयाब और कामरान होगी। आमीन। वो जिंदगी के अंदर कभी तनाव नहीं आएगा, कभी बिखरेगी नहीं, क्योंकि वो बेटी और बेटा खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, खुदा के हुक्मों को मानता था, खुदा की मर्जी के साथ चलता था, और खुदा वफादार खुदा है, वो अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। और यहां लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि वो वफादार है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ क्या करता है? 1000 बरस तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। रहम के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज मैंने आपको पिछले दफा भी बताया था, कि किसी को याद है क्या है? जी, रहम करना, फजल करना। खुदावंद का ये रहम, खुदा का फजल, खुदा का ग्रेस, ये हमारे लिए हुआ है। आमीन। क्योंकि हम हकदार नहीं थे, हम भटके हुए लोग थे, हम गैर माफ मिलेगा कि हमारी हालत क्या थी, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है। उसने वादा किया कि जो मेरे से मोहब्बत रखेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा, मैं अपने अहद को कायम रखता हूं और उन पर रहम करता हूं। और लिखा कि जो उससे अदावत रखते हैं, उनको उनके देखते ही देखे क्या करता है? बदला देकर हलाक कर डालता है। ये खुदा का वादा है इंसान के साथ। आज भी देखें, बहुत सारी दुनिया के लोग हैं जो खुदा के साथ नाफरमानी करते हैं, खुदा माँ बाप। तो वहां खुदा अपने कलाम में हमें यह बताता है, 6ठी आयत के अंदर लिखा है कि हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। आज भी बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और ये खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिए ना सिर्फ बनी इस्राएली कौम को, बल्कि मुझे और आपको ये पैगाम दिया कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, मैं उन पर रहम करता हूं। हमारा जो खुदावंद है हम पर रहम करता है, हम पर अपने फजल का दरवाजा खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर फजल का दरवाजा खुला रहे, तो आज से खुदावंद की मोहब्बत में शामिल हो जाए। आमीन। उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। कलाम कहता है कि उठते बैठते चलते फिरते अपने मालिक खुदावंद का शुक्र करें। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब उसकी तारीफ करेंगे, तो हम खुदा के साथ जुड़ेंगे। और अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब के अंदर आपके सामने बहुत सारी गवाहियां हैं। खुदा ने बुजुर्ग आदम को क्या हुक्म दिया था? खुदा ने उसको हुक्म दिया और कहा कि तुमने इस बाग की क्या करनी है? निगहबानी करनी है, बागबानी करनी है। एक अथॉरिटी दी गई इंसान को। खुदा ने कहा कि ये तुमने करना है। आज खुदा अगर हमें कहता है कि आज तुमने मोहब्बत करनी है, मेरे हुक्मों को मानना है, तो उस वक्त तो खुदा ने बुजुर्ग आदम और हवा को ये हुक्म दिया था। तो क्या आज हमारे ऊपर ये हुक्म सादर नहीं होता? आज हम पर भी ये अप्लाई होता है कि अगर खुदा ने आदम को हुक्म दिया है, खुदा ने बनी इस्राएली कौम को हुक्म दिया है, जंटाइल को, गैर कौम को हुक्म दिया है, तो मुझे और खुदा ने आपको भी हुक्म दिया है ना। आमीन। सो खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं क्या करता हूं? हजारों पर रहम करता और उन पर फजल करता हूं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर फजल आए? आमीन। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मोहब्बत करनी है। किसके साथ? खुदा के साथ। क्योंकि इंसानों के साथ आप जितनी भी मोहब्बत कर लें, इंसान कभी भी वफादार नहीं रहता। कभी भी कोई शख्स आप जिंदगी में देख लें, आप किसी के साथ जितनी मर्जी मोहब्बत करें, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि वो आपको दिल दिखाएगा, आपको वो कोई ना कोई ऐसी बात करेगा कि आपका दिल दुखेगा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे तजुर्बात किए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से मोहब्बत भी की है, लेकिन मुझे वहां से दुख मिला है। और ये मेरा प्रैक्टिकली तजुर्बा है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कामल नहीं हैं। सिर्फ कामल एक ही था, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था। कलाम कहता है कि वो जान देने तक क्या रहा? वफादार रहा।
उसने वफादारी की, उसने मोहब्बत इंसान से की, उसने मोहब्बत की तो अपनी जान दी ना। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। ये खुदावंद के बेटे यीशु मसीह की इंसान से मोहब्बत थी, ताकि उसी बाग अदन के जो जगह खाली हो गई थी ना, जहां से निकाल दिया गया आदम और हवा को, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दोबारा ये रिपेंट का काम हुआ। और यीशु मसीह चाहते थे कि उसी जगह पे इंसान को उसी मकाम पे लाए, ताकि फिर से इंसान जो है उसी मोहब्बत के अंदर शामिल हो जाए। और ये खुदा की मोहब्बत ना सिर्फ अभी से है, बल्कि ये अजल से ही खुदा ने अपने लोगों के साथ मोहब्बत की है। हमने उस मोहब्बत को जाना नहीं आज तक। हम आज तक उस मोहब्बत के उस महानी तक पहुंच नहीं सके, क्योंकि हमने दुनिया की बातें सीखी हैं, दुनिया की सी मोहब्बत की है, दुनिया के लोगों के साथ मोहब्बत करना शुरू की, लेकिन हम नाकाम रहे। अब जितनी मर्जी किसी के साथ मोहब्बत कर लें, जितनी भी मोहब्बत कर लें, बहुत दफा भाई बहनों के साथ मोहब्बत करते हैं, बेटियां माँ बाप के साथ करती हैं, माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन जो माँ बाप बच्चों के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, कुर्बानी देता है, कई दफा वो बच्चे माँ बाप का दिल दुखाते हैं। ऐसा है ना? तो हमें सीखने की जरूरत है कि अगर आपके खानदान के अंदर आपके बुजुर्ग या आपके बेटे बेटियां आपके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उस इलाही मोहब्बत में उनको शामिल करें। खुदावंद की मोहब्बत में जब आप शामिल होंगे, फिर आप उस मोहब्बत में किसी को शामिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, तो आप उस मोहब्बत को बांट नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत जो है वो कमजोर है। दुनिया की मोहब्बत क्या है? कमजोर है, वीक है। खुदा की मोहब्बत जो है वो जोरावर है और कुव्वत है, रखती है। हालेलुया। अगर आप निकालते हैं पहला यूहन्ना और उसका दूसरा बाब, इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग अक्सर सवालात करते हैं, जी हमारे लिए हुक्म मानना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हमसे नहीं हो सकता। बहुत दफा अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा बाब हम निकालेंगे, और यहां खुदा अपने कलाम में अपने बंदे के जरिए हुक्म देता है, हमें बताता है। उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। बहुत दफा लोग कहते हैं, मैं तो खुदावंद को जानता हूं, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मैं रसूलों को जानता हूं, नबियों को जानता हूं, पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट है कि हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। आमीन। जानना काफी नहीं है, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। और कलाम कहता है कि जो ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल करता हूं, वो क्या है? क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? किसी ने नहीं खोला? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि उसे मैं जान गया हूं, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है, झूठा सच्चाई से वाकिफ नहीं, वो झूठा है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर है तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। यीशु मसीह ने आजाद करने के लिए आया है, ना कि हलाक करने के लिए। आमीन। तो यहां आपको यह समझना चाहिए कि हमें उसके हुक्मों को मानना है। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत क्या हो गई है? कामिल हो गई है। और जब कामिल मोहब्बत आ गई है, जिसके अंदर कोई भी दाग धब्बा झुरी नहीं होती, महीन कतानी कपड़े की तरह खूबसूरत पाक साफ जिंदगी जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है, तो वो कामिल मोहब्बत है। इसी से हमें मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि उसमें मैं कायम हूं, तो चाहे ये भी इसी तरह चलना चाहिए। हमें भी जिस तरह खुदा चाहता है उसी तरह हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि खुदा का ये हुक्म है। और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, बहुत दफा लोग कहते हैं ना, हम तो बेगुनाह हैं, हम क्यों खुदा का हुक्म माने, हमने तो कभी गुनाह ही नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम में है कोई ऐसा शख्स दिलेर जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? बताएं, कोई था ऐसा? कोई शख्स दुनिया में आज तक नजर नहीं आया कि कोई यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा सके कि इसने गुनाह किया है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह था ही नहीं। और कलाम कहता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं उसकी 8वीं आयत में, और हम में सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम बहुत दफा सच्चाई से वाकिफ होना ही नहीं चाहते। कलाम कहते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो, लेकिन हम उन सच्चाइयों तक पहुंचना ही नहीं चाहते।
हम नहीं चाहते कि हम मजीद गहराई के अंदर जाए, हम मजीद कलाम को सीखें, समझे। जो बात अभी हमने पुराने अहदनामे में से देखी कि खुदा ने क्या बोला कि तो अपने सारे दिल से, कि थोड़े दिल से, मुकम्मल दिल से। तो वो कहता है कि अगर हम कलाम को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर हमें सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, हमें सच्चाई नहीं। कलाम कहता है कि अगर अपने गुनाहों का हम क्या करेंगे, इकरार करेंगे, तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से, थोड़ी से, सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका खिलाफ हमें नहीं है। सो आज आप ज़हन में रखिएगा कि हमने कभी भी मोहब्बत को नहीं छोड़ना। मोहब्बत की सच्चाइयां क्या हैं? आपको पता है कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ने मोहब्बत की सच्चाइयों के तल्लुक से कुछ हमें ऐसी सुनहरी बातें दी हैं। कोई बता सकता है कि कोई हवाला कौन सा है? पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत हमें तालीम दी है इसके ताल्लुक से, मोहब्बत के ताल्लुक से। हालेलुया, हालेलुया। जी कौन सा? 9 आए मेरे साथ निकाले पहला करंथियों 13वां बाब, बड़ा मशहूर और मरूफ है। लेकिन मसला यह है कि जब हम कलाम पर निगाह करते हैं, कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें याद रहता है। कई बार हम अंदाजे लगाते हैं लेकिन हमारे अंदाजे कंप्लीट नहीं होते। यहां पौलुस रसूल ने मोहब्बत की डेफिनेशन बताई है, मोहब्बत का असर दिखाया है कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है। अगर आप निकालना चाहते हैं जरूर निकालें। उसकी पहली आयत में लिखा कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखो तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझलाती। आप कई दफा ऐसे शोर डालते हैं, और बाजी मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, पादरी साहब मैं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदा, मैं ऐ करांगा वो करांगा, कलीसिया दे नाल बड़े खादम वादा करदे ने, लेकिन वो मोहब्बत आरजी होती है। हमें चाहिए कि हम जो कमिटमेंट करें, चाहे वो कलीसिया के साथ हो या खुदा के साथ हो, उसको अपनी निगाह के अंदर रखें। हमारे जो लफ्ज है ना, ये क्रिएशन का काम करते हैं। बड़ी गौर तलब बात मैं करने लगा हूं। हमारे लफ्ज जो हम बोलते हैं ना, ये बिगिनिंग का काम करते हैं। जिस तरह के खुदा ने पैदाइश की किताब में कहा, क्या बोला कि सुबह हो जा शाम हो जा, हुई ना। खुदा ने पानियों को पानी से क्या किया, हो गए ना पानी। ये खुदा ने कहा अपने मुंह से और वो होना शुरू हो गया। जब हम किसी के लिए बरकत मांगते हैं, अगर वो ईमान से रिसीव करता है तो उसके लिए बरकत मंसूब हो जाती है। आपको पता है बिलाम नबी था एक, वो एक वक्त में किसी के साथ बरकत की दुआ देता था और किसी वक्त लानत की दुआ देता था। हमें देखना है कि हमारा प्रनाउंस करना, हमारा बोलना क्या वैल्यू रखता है। हम किसके लिए बरकत मांग रहे हैं या लानत? आमीन। हमें सीखना है कि हमारी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर जब होगी, हम जब किसी के लिए मोहब्बत के अल्फाज बोलेंगे, किसी के लिए अच्छा बोलेंगे, तो वो बिगनिंग का काम करेगा, वो अल्फाज कायम होते हैं। और खुदा हमारे लफ्जों की जो है कदर करता है, ख्याल करता है। और लिखा है उसकी 4थी आयत में कि मोहब्बत क्या है? साबिर है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको कुदरती तौर पे एक सब्र आएगा। आपको पता होगा कि ये वाकई ये मेरी बहन, ये मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करता है, इसने जो बोला है ऐसा ही होगा, क्योंकि आप के अंदर खुदा की मोहब्बत है, उसका इत्मीनान है। और कलाम कहता है कि मोहब्बत जो है वो साबर है, मेहरबान है, और उसके अंदर हसद नहीं होता। वो जो है शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, न ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदगुमानी से खुश नहीं होती। बहुत सारी डेफिनेशन है। रास्ती से खुश होती है, बदगारी से वो खुश नहीं होती, और अपनी बेहतरी नहीं चाहती। आज बहुत सारे लोग हम अपनी अपनी बेहतरी सोचते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कहां मुफाद है, पंजाबी में कहते हैं कि हमारा कहां उल्लू सीधा हो रहा है। बहुत दफा ऐसे होता है। पिछली दफा जो खादम आए थे उन्होंने भी हमें ये बताया कि हम किसी मफादात के लिए नहीं, किसी अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, हम अंजील की बिशारत के लिए काम करें। आमीन। हमें खुदा ने जो काम दिया है वो अंजील की बिशारत का काम दिया है। और मैं कल एक बाइबल स्टडी दे रहा था और उसमें मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा था कि खुदा का कलाम जो है वो खुशी के साथ हमें बांटना है। और मैंने ये बड़ी दिलेरी के साथ कहा कि जब मुझे कोई बुलाता है अपने घर में कि हमारे घर दुआ कलाम के लिए, तो मैं खुशी से जाता हूं, मुझे खुशी होती है रूहानी तौर पे। लेकिन अगर कोई कहे जी फारग टाइम में आ जाए 2 घंटे के लिए, तो मैं नहीं जाता।
कोई भी खुशी के साथ मुझे कलाम के लिए, दुआ के लिए बुलाया तो मैं खुशी के साथ जाता हूं, और ये आज से नहीं, बड़े टाइम हो गया मुझे इसके, और मैं शुक्र करता हूं कि खुदा की ये मोहब्बत मेरे दिल में है ताकि मैं कलीसिया के लिए कुछ कर सकूं। आमीन। और यहां खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत को जवाल नहीं होता। अब जवाल किन लोगों पर आता है? जिनकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत ही नहीं होती, खुदा की मोहब्बत ही नहीं होती, उनकी जिंदगी के अंदर जवाल आता है। जवाल को आप कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, जो बरकतें हैं वो आस्ता आस्ता जिंदगी से निकलना शुरू हो जाती हैं, बच्चे जो है वो नाफरमान होना शुरू हो जाते हैं, मियां बीवी के अंदर जो तनाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। मैं मियां बीवी का अक्सर जिक्र कलाम में क्यों करता हूं कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया था इसलिए कि वो खुदा की वफादारी में शामिल हो। आमीन। लेकिन वो खुदा के हुक्मों को मान नहीं सके। जब कोई जोड़ा ब्याह जाता है, अगर वो हुक्मों को नहीं मानता, अपनी जिंदगी को नहीं मानता, वो जिंदगी कभी फ्रूटफुल नहीं होती। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आज हमें नौजवान नस्ल को ये सोचना चाहिए कि अगर नौजवानी के राह में खुदा ने आपको बरकत दी है तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। आमीन। और कलाम ये कहता है कि नबूवतें हो तो सब जाती रहेंगी। वो कहता है कि हमारा इल्म तो भी नाकस है, अभी बहुत चीजें हमें सीखने की जरूरत है। आमीन। और कलाम कहता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो कहता है जब कामिल आएगा ना तो नाकस सारियां चीजें हमारी जाती रहेंगी। और कामिल कौन है? जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आएगा। आमीन। तो कामिल का जिक्र वो कर रहा है कि यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आएगा तो सब कुछ होगा। अब वो कहता है कि हमें आईना में धुंधला सा नजर आता है। बहुत दफा हम देख रहे होते हैं, हम आस लगाए होते हैं कि शायद हमने जो मोहब्बत के साथ किसी को गिफ्ट दिया है शायद हमें वापस मिल जाए। कई दफा हम इस खुशी के साथ, शादमानी के साथ भी देते हैं, भागी चढ़ाना जिसे कहते हैं, कि हम आज किसी को देंगे तो कल हमें देगा। यह मोहब्बत की निशानी नहीं है। मोहब्बत गिव एंड टेक का नाम नहीं है, मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। आमीन। ये बड़ी बड़ी खास बात है। औखी गल कि हम किसी को देते हैं तो हमें आस होती है कि हमें दे। पानियां चढ़ाई जाती है ना शादियों के अंदर, जो आज हम करेंगे तो हमें मिलेगा। खुदा कहता है जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बाया ना जाने। ये कलाम की बात है, मैं अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की है। ये खुदा का हुक्म है कि जो तेरा दाया हाथ करता है उसे बाया ना जाने। तो हमें आज ठंठलाता और पीतल नहीं होना, झंझलाती झांझ नहीं होना। और 13वीं आयत में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, कलाम मुकद्दस में से लिखा है। वो कहता है गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है। अफजल इसमें क्या है? सबसे ज्यादा जो फजीलत दी गई वो मोहब्बत को दी गई है। आज हमें जरूरी है कि क्या हम उस मोहब्बत को जानते हैं? क्या वो मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर नजर भी आती है? हालेलुया। अब मत्ती की अंजील जो अब हमने पढ़ी तो वहां हमें खुदा के वचन के अंदर जो बात नजर आई कि जो सवाल खुदा ने यीशु मसीह से किया गया, कि आज वो सवाल कि हम अपनी जिंदगी के खानदानों के कलीसियाओं के अंदर क्या हम ये कर सकते हैं कि क्या मैं या आप खुदा के साथ उस मोहब्बत का इजहार उस तरीके से करते हैं जो खुदा चाहता है? आज हमें सोचने की जरूरत है ना, कुछ वक्त के लिए अगर सोचें कि जो खुदा चाहता है हम उसके साथ मोहब्बत करें, क्या हम वैसे करते हैं? बहुत दफा, कई दफा हम इकरार करते हैं, कलीसियाओं के अंदर बड़े बड़े जो है वो गवाहियां आती हैं। बहुत सारे लोग जब दुआ के लिए आते हैं उस वक्त प्रिपेयर हो जाते हैं, खुदा के साथ वादे करते हैं, लेकिन जो ही वहां से निकल गए तो उस मोहब्बत में भी वो शामिल नहीं हो सके जो खुदा ने उनको दी थी, और जो अहद उन्होंने किया उसमें भी वो शामिल नहीं हो सके। कई दफा हम बहुत सारी बातों को छोड़ देते हैं, और यही बात जो है यीशु मसीह ने यहां की कि यीशु मसीह ने कहा कि हमें क्या करना है कि अपने सारे दिल के साथ, हमारा दिल जो खुदा ने दिया है मुकम्मल दिल दिया है। इस मुकम्मल दिल के अंदर बहुत कुछ है। दिल के अंदर आप जो मर्जी भर लें, आप इसमें चाहे खुशियां, शादमानियां, खुदावन के कलाम की बातों को भर लें या आप दुनिया की बातें भर लें। क्यों भाई जुबैर? ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या भरना है। ये दिल खुदा की तरफ से हमें दिया गया है, और जो हमें जान, हमारे खून है हमारी जिंदगी के अंदर, उस खून के अंदर ताकत होती है। और ये खून, ये ताकत अगर हम किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इस खून का क्या फायदा? कलाम में लिखा है कि खून बहाए बगैर माफी नहीं मिलती। खून बहाना जरूरी है। और फिर खुदा ने हमें ये जो खोपड़ी दी है ना, इसके अंदर अक्ल दी है, जहन दिया है,
कलाम मुकद्दस में बहुत सारे शागिर्द यीशु मसीह के कलाम को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। यीशु मसीह इस बात को समझ गए। यीशु मसीह समझ गए कि मेरे शागिर्द जो हैं वो बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। आज बहुत सारे अभी भी शागिर्द हैं, मैं भी खुद शागिर्द हूं, कलाम को सीखता हूं, कई दफा मैं समझ नहीं आती। लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने उनको अपने पास बुलाया, क्योंकि वो खुद भी यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारते थे, और यीशु मसीह ने फिर उनका जहन खोला ताकि वो कलाम मुकद्दस की बातों को क्या करें, समझें। आज हमें समझ की जरूरत है। अगर आज हम नहीं समझ रहे खुदा की मोहब्बत को, तो खुदा को कहने की जरूरत है कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें वो समझ, हमें अक्ल, ज्ञान, ध्यान दे, ताकि तेरे कलाम की हकीकी बातों को समझ सकें और फिर खुदा तुझसे मोहब्बत कर सकें। और ये बड़ा हुक्म खुदा ने दिया है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। आमीन। और अगर हम ये बातें नहीं समझते, अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं करते, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किस मकाम के ऊपर खड़े हैं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम वो चाहते हैं जो हमारे लिए हो, लेकिन कई बार हमारी जिंदगी के अंदर वो नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ख्वाहिशें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर होंगी। आज भी आप चाहते होंगे खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमें आगाह करे, खुदा हमें सिखाए, खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाए, लेकिन आपकी मोहब्बत क्या इस लायक है? अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा करें, मोहब्बत की ना रोजाना धुलाई किया करें। जैसे कपड़े धो के डालते हैं ना, डेली हम मुंह धोते हैं, नहाते हैं, इसी तरह हम मोहब्बत को डेली याद करें कि खुदा तेरी मोहब्बत बेपनाह है, खुदा तेरा प्यार इतना बड़ा है कि तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, तूने मेरे लिए ये किया। खुदा तेरी मोहब्बत से मैं बहुत ज्यादा कुव्वत पाता हूं। जितने अल्फाज आप खुदावंद के साथ शामिल करेंगे, मोहब्बत के अल्फाजों के साथ, उतनी मोहब्बत खुदा की आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि बनी इसराइली कौम जब बुजुर्ग मूसा के साथ बहरे कुलसुम के आगे गई, और वो शोर के इलाके में जब जाते हैं, बियाबान में जाते हैं, और आप देखते हैं कि वहां उनको कोई पानी नहीं मिलता पीने के लिए, क्योंकि वो इलाका जो था वो बहुत अजीब किस्म का पथरीली जगह थी, और वहां कड़वा पानी उस जगह के अंदर, जिसका नाम मारा पड़ा, उसके अंदर पानी बहुत कड़वा था। और खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी लाठी को क्या करता है, उस जगह पर मारता है। और मारने से क्या हुआ, हुक्म मारने से क्या नतीजा निकला कि उस जगह का पानी जो कड़वा था क्या हो गया। आज कलाम जो है, कड़वी बातें हम करते हैं ना, तो कई दफा हमें कड़वी लगती हैं कि पादरी साहब हर वेले या फला बंदा सानू हर वेले गाइड ही करते रहता ना, कड़वी बातें हमें लगती हैं। लेकिन कलाम ये कहता है, और दुनिया की भी बात है, पुराने वक्तों में गोलियां जो होती थी ना, बड़ी सख्त कड़वी होती थी। बच्चे गोली नहीं खाते थे तो मां धक्के ना मुंह च पा के ना, सामने चुंगली पा के तू पानी देती सी, और कड़वी लग रही सी अंदर बड़ी कोड़ी। लेकिन जब कड़वी गोली जाती थी तो फिर बुखार उतरता था, आराम आता था। जब कड़वापन हमारे अंदर जाएगा ना, कलाम जाएगा, तो फिर अंदर बहाली आएगी। आमीन। मोहब्बत आएगी, खलूस आएगा। और ये देखें कि जब वो पानी उन्होंने पिया तो वो क्या हो गया, मीठा हो गया। और वहीं खुदा ने उनके लिए एक आइन और शरीयत मुकर्रर की। खुदा चाहता है कि उसकी शरह के अंदर, अब शरह जो है उसकी मुखालफत हमने करनी है या शरह के अंदर शामिल होना है। पूरा कलाम मुकद्दस आप पढ़े ना, तो उसमें से आपको 85% शरीयत नजर आएगी, चाहे वो पुराना अहदनामा या नया है। नए अहदनामे के अंदर की मैं बात कर रहा हूं कि नए अहदनामे के अंदर 85% शरीयत मौजूद है, लेकिन हम उसको समझते नहीं। हम कहते हैं वो फजल का दौर है। और कल भी कहीं बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि फजल यीशु मसीह के वसीले से कोई जरूरी खास नहीं आया, फजल खुदा का पहले था। यूहन्ना कहता है कि अब फजल पर फजल हुआ है, और पहले एक फजल हुआ ऐसे दूसरा भी हो गया यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसका डबल फजल कलीसिया पर हुआ है, मेरे और आपके ऊपर। और ये खुदा की मोहब्बत है, अगर वो फजल हुआ, रहम हुआ है, हमें उसे कबूल करना है। और खुदा ने फिर बनी इसराइली को जो हुक्म दिया, उसने कहा कि तुमने क्या करना है, मेरी शरीयत आइन को मानना है, और तू अपने दिल को क्या करना है, मेरी तरफ लगाना है। मेरी बात क्या करना है, गौर से सुननी है, वही करना है। अगर आपने निकालना है, खरोज की किताब जरूर निकालिएगा, उसका 15वां बाप है, उसकी 22वीं आयत में पढ़ रहा हूं। लिखा है कि खुदा ने कहा कि जो फिर मैं तुझे कहता हूं दिल लगा कर करना है, और खुदा की बात को सुनना है।
ये मोहब्बत की डेफिनेशन है। फिर दिल लगाकर गौर से सुनना है और वही करना है जो खुदा आपको कहता है, वो आपकी नजर के अंदर भला हो और उसके हुक्मों को माने और उन आइन पर अमल करे। तो कलाम में फिर एक लिखा है कि उन बीमारियों से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी थी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा शाफी खुदा हूं। हालेलुया। तो हमारा खुदा शाफी खुदा है। अगर हम उसकी मोहब्बत के अंदर शामिल होते हैं, वो हम पर रहम करता है, अपने हुक्मों को जो देता है वो सख्त नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा के हुक्म सख्त है, खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। अगर हम फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, आजी के साथ उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो खुदा आप पर रहम करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर एक नया काम करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर वो होने देगा जो आज तक आपकी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नया हो, तो आज उस मोहब्बत को मांगे खुदा से। खुदा को कहे कि खुदा मैं ठीक तौर पर, लायक तौर पर अगर मैं तेरे हजूर आकर तेरी उस मोहब्बत को नहीं जान सका, नहीं जान सकी, तो खुदा तो अपनी मोहब्बत मुझे सिखा, अपने आइन सिखा, अपने हुक्म मुझे बता, ताकि मैं तेरे हुक्मों पर चलने वाला, चलने वाली हूं। वो यकीनन आपको बरकत देगा। हम सब खड़े हों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा को कहें, खुदा को कहे कि खुदा जहां कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, जहां कहीं खुदा हमने तुझे छोड़ दिया है, खुदा हमने वो पहली सी मोहब्बत नहीं की। मुकाशों की किताब में लिखा हुआ है कि हमने वो पहली सी मोहब्बत खुदा से छोड़ दी है। अगर खुदा से हम